کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ ہر انسان کو دنیا پر جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی پڑے گا۔ ایسے ایک انسان جو ہر وقت گناہوں میں ملبس رہا کرتا تھا، جس کے خیالات بھی گناہوں سے بھرے ہوئے، جس کی ذہنیت ہی گناہوں سے بھری ہوئی، ہر وقت اٹھتا تب گناہ کے بارے میں سوچتا، چلتا تب گناہ کے بارے میں سوچتا، کسی سے بات کرتا تب بھی گناہوں سے کی نسبت سے بات کرتا، اس کے خیالات گناہوں سے بھرا ہوا، اس کی ذہنیت گناہوں سے بھری ہوئی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مار پڑتی ہے تو اچھوں کو راستہ سیدھا نظر آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ ہوتی تو اس وقت خیال آتا ہے کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں وہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندے کو ذرہ برابر تکلیف دیتا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ تکلیف کا احساس جب بھی ہوا کرتا ہے جب خود اپنے بدن پر کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت ہوتی ہے، تب معلوم چلتا ہے کہ ہاں مصیبت ہوتی کیا ہے۔ ویسے اگر آدمی صحیح سلامت ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ دوسروں کی تکلیف آج کے زمانے میں کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی مال و دولت سے نوازا، گاڑی اس کے پاس، بنگلہ اس کے پاس، بینک بیلنس اس کے پاس، بڑی پراپرٹی اس کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ نے تمام مال و دولت سے اسے نوازا، بہت کچھ عطا فرمایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احساناتوں کو بھول گیا، اس کا نافرمان بندہ ہو گیا، اللہ کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ فرشتے نے عرض کیا، پروردگار تو نے اپنے بندے کو اتنا دیا، اتنا نوازا، سب کچھ کی عزت، شہرت، مال و دولت سب کچھ دیا، آج اس نے تیرا نام لینا تو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرشتے دیکھو گے یہ میرا نام کیسے لیتا ہے۔ راستے سے وہ شخص جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، پیر کی گائی پھٹ گئی، ٹھوکر لگی پیر میں اتنی شدید، اتنی زخم ہوا، اتنی چوٹ لگ گئی کہ خون بہنے لگا کہ ایسا زخم بن گیا وہ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ اب اس میں ایسا درد اللہ نے رکھ دیا، اٹھتا ہے تب اللہ اللہ کرتا ہے، چلتا تب اللہ اللہ کرتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی گہرائی سے یاد کرتا ہے، جب خوشحالی ہوتی تو اس وقت اللہ کو انسان بھول جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ وفاداری ہونا چاہیے، اگر اللہ نے تمہیں خوشحالی عطا فرمائی اس وقت بھی اپنے رب کو نہ بھولو، اور تکلیف میں بھی اپنے رب کو نہ بھولو۔ مگر آج ہماری تمہاری حقیقت اور پہچان کیا بن گئی؟ اللہ کی طرف سے اگر خوشحالی مل گئی، جس رب نے خوشحالی دی ہم نے اس خوشی میں اپنے رب کو بھلا دیا، اور تکلیف ذرہ برابر ملی تو ہم اللہ کے اتنے وفادار ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس خوشحالی سے بہتر ہے جس خوشحالی میں اللہ کا ذکر تمہاری زبان سے نہ ہو، تو ایسی خوشحالی سے بدحالی اچھی ہے تاکہ تمہاری زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ ایک نوجوان شخص تھا جو گناہوں کے دلدل میں دسا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں گناہ نہیں کروں گا بلکہ سچی توبہ کر لوں گا۔ اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش آ چکی تھی، تو اس نے کہا چلو ایک بابا جی ہمارے محلے میں رہتے ہیں، وہ قبرستان کی مردوں کی قبریں کھودتے ہیں اور مرنے والے کو غسل بھی دیا کرتے ہیں، چلو بابا کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی آج تک آپ نے مردے کو غسل دیا یا قبرستان میں قبریں کھودی؟ کیا کوئی آپ نے ایسا حیرت انگیز واقعہ دیکھا ہے جو دیکھ کر انسان کی رغبت دنیا سے ہٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے سینے میں آ جائے؟ آپ کوئی ایسا حیرت انگیز ہمیں واقعہ بتائیں، آپ مرنے کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کو غسل دے چکے ہوں گے، ہمیں ایک مردے کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کوئی نئی بات ایسی دیکھی جس کو دیکھ کر کلیجہ دہل جائے۔ اس نوجوان نے جب یہ بات اس قبر کھودنے والے، غسل دینے والے سے کہی تو اس نے کہا ہاں میری زندگی میں بہت سارے واقعات گزرے ہیں، ایک واقعہ سے میں تم کو ضرور آگاہ کراؤں گا۔ تو نوجوان کے پوچھنے پر وہ قبر کھودنے والا، مردوں کو غسل دینے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تجھے کل ضرور یہ واقعہ سے آگاہ کروں گا جو میں قبر کھودتے وقت اور میں نے لوگوں کی غسل دیتے ہوئے لوگوں کے حالات دیکھے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد
नौजवान चला गया। दूसरे दिन तो वो कब्र खोदने वाला, मुर्दों को गुस्ल देने वाला, उसके पास एक पैगाम आ गया मोहल्ले से थोड़ी दूर से कि फला का इंतकाल एक शख्स का, नौजवान का हो गया है, हमारे साथ चलो, हमारे घर मुर्दे को गुस्ल देना है। तो ये शख्स कब्र खोदने वाला, मुर्दों को गुस्ल देने वाला, जब उसके मकान पर पहुंचा, उसने कहा घर के एक खवातीन, एक औरत बैठी हुई थी, रो रही थी, बड़ी गिरियोगजारी कर रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, रो रही थी कि मेरा जवान बेटा दुनिया से इंतकाल कर गया। और ये हकीकत है कि जिसका जवान बेटा दुनिया से जाता है उस वक्त उसके घर वालों पर एक क़यामत से कम दर्द नहीं होता है। जिसकी जवान औलाद दुनिया से जाती है उस वक्त उसके माँ बाप के ऊपर इतना बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उससे बड़ी कोई दुनिया के अंदर तकलीफ नहीं होती है। सबसे बड़ा बोझ उसके बाप पर वही होता है जिसके कांधे पर उसके जवान बेटे की लाश होती है, उससे बड़ा कोई बोझ नहीं हो सकता है। वो कब्र खोदने वाला, मुर्दों को गुस्ल देने वाला, उस खवातीन, उस औरत से कहा, कहां कौन था तेरा बेटा इंतकाल कर गया है, कौन है जिसका है मुझे गुस्ल देना है, बता जल्दी मैं गुस्ल दे दूं। वो शख्स कब्र खोदने वाला कहता है, गुस्ल देने वाला कहता है, मैं जब उस नौजवान के पास गया तो उसका चौदहवीं के चांद से जैसा हसीन और जमील चमकता हुआ चेहरा जब मैंने देखा है, इतना खूबसूरत चेहरा मैंने देखा, ये वही नौजवान था जो कल मेरे पास आया हुआ था, कल जो मेरे पास आकर कहता था कि बाबा जी कोई आपने कितने गुस्ल दिए हैं, मुझे एक गुस्ल के बारे में बताइए, मरने वाले के बारे में कोई आपने हैरत अंगेज वाकया देखा मुझे बताएं। कब्र बहुत सारी आपने खोदी, कब्रिस्तान में कोई वाकया आपने देखा तो मुझे बताएं। कब्र खोदने वाला, गुस्ल देने वाला कहता है, जो कल मेरे पास जो नौजवान आया था वाकया सुनने के लिए, आज वही नौजवान की लाश पड़ी हुई थी, वही नौजवान मुर्दा लेटा हुआ था। मैं देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसको तो मैं कब्र के हालात बताने वाला था, इसको तो मैं मरने के बाद के हालात बताने वाला था, गुस्ल के बहुत सारे वाकयात इसको सुनाने वाला था, मरने के वाले के साथ मैंने क्या क्या वाकयात देखे थे। ये तो दुनिया से चला गया। वो कब्र खोदने वाला, गुस्ल देने वाला, वो फौरन उसके घर की औरत से मिलता और कहता, मुझे बताओ ये नौजवान का इंतकाल कैसे हो गया और कब हो गया है, क्या वजह हुई है, इतना अच्छा चेहरेदार, इतना खूबसूरत इंसान कल बड़ा अट्टा कट्टा चलता फिरता था, कल हमारे पास ये आया था और हमसे इसने सवाल भी किया, आज मैं उसको जवाब देने का था और सवाल करने के बाद जवाब सुनने से पहले दुनिया से चला गया, ऐसी कौन सी वजह आई है। तो औरत उसके घर की, उसकी बीबी आंखों से आंसू जारी है और रो रो कर गिरिया गुजारी कर रही, कह रही कल ये हमारा शौहर, हमारा बेटा, उसकी माँ भी कहती कि हमारा बेटा, उसके भाई कहते हमारा भाई, बहनें कहती हमारा भाई, ये कल तो सही सलामत था, ठीक ठाक था, मगर आज ये दुनिया से चला गया है। तो वो गुस्ल देने वाला शख्स कहता है, एक बात और बताओ, मैंने दुनिया में ना जाने कितनी लाशों को देखा है, मैंने ना जाने दुनिया में कितने मरने वालों को गुस्ल को दिया है, मैंने दुनिया में ना जाने कितने मरने वालों की कब्रों को तैयार किया, खोदा है, मगर जो मैंने रुआब और दबदबा, जो मैंने खूबसूरती आप तेरे शौहर में देखी है, उस माँ से कहा, माँ मैंने जितनी खूबसूरती और मैयत के पास खुशबू जो मैंने तेरे आज बेटे के पास देखी है, वो मैंने आज तक किसी मरने वाले की जनाजे में नहीं देखी है, किसी मरने वाले की लाश बॉडी के पास नहीं देखी है, मरने वाले की कब्र में भी ऐसी खुशबू नहीं देखी है। मुसलमानों जब उसने इतनी बात कही तो उसकी माँ और उसकी बीबी की आंखों में आंसू आ गए, दोनों रोने लगी। तो कब्र खोदने वाला, गुस्ल देने वाला कहता, नहीं नहीं मुझे बताओ इसकी वजह क्या, ये चेहरा इतना खूबसूरत क्यों हो गया है, कल ये इतना खूबसूरत जिंदा था तो नहीं था, आज मरने के बाद इसके चेहरे पर इतनी खूबसूरती कहां आ गई है। वो कब्र खोदने वाला, गुस्ल देने वाला कहता है, ए माँ मुझे ये बता, आज इसके चेहरे के पास ये खुशबू कैसे उठ रही है, ये तो मुश्को अंबर से ज्यादा इसके पास खुशबू आ रही है, इसने कौन सा ऐसा नेक अमल किया है, कौन सी ऐसी नेकियां किया करता था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके चेहरे को 14वीं के चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील कर दिया है। अरे बूढ़ी माँ मुझे बता, ये तेरा बेटा कौन सा ऐसा वजीफा किया करता था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदन से मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू पैदा फरमा दी है। यह बात कही तो माँ सिसकियां लेकर रोकर कहती है, बेटा हमारा बेटा इतना नेक मुत्तकी परहेजगार था, हर वक्त उसके कमरे से अल्लाह की सदाएं आया करती थी, कमरे के अंदर पूरी पूरी रात मेरा बेटा अल्लाह की इबादत करता था और मेरी रात के किसी हिस्से में आंख खुलती थी तो इस बेटे के कमरे के अंदर से अल्लाह की सदाएं आया करती थी। और जो वाकई हर वक्त अपने रब को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदन में खुशबू ही पैदा फरमा देता है। जो बंदा अपने रब का वफादार होता है, पांचों वक्त की नमाजें पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद उसके चेहरे को 14वीं के चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील कर देता है। इतना कहा और माँ ने कहा,
जानते हो हमारा बेटा कल मोहल्ले में निकला था, कल ऐसे घूमने की नजर से निकला और ये नजर से निकला और मेरे पास आया और कहा अम्मी जान उम्र तो काफी हो गई है, मैं अल्लाह के घर खाने काबा का दीदार करना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे बेटे ने ख्वाहिश की थी कि माँ मैं हज करना चाहता हूँ, खाने काबा का दीदार करना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा बड़ी खुशी की बात है, अगर तू अल्लाह के घर खाने काबा का दीदार करना चाहता, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। माँ कहती मेरा बेटा बड़ा खुश था कि कल हज के लिए निकलने वाला था, हज जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब मोहल्ले में गश्त करने के लिए घूमने के लिए निकला, लोगों को मुबारकबाद देने के लिए निकला कि मैं कल हज को अल्लाह के घर खाने काबा के दीदार के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों तारीख शाहिद है वो माँ कितनी खुश होती है जिसकी औलाद अल्लाह के घर खाने काबा को देखने के लिए जाती है। अरे माँ बाप तो उस वक्त भी बड़े खुशहाल होते हैं जब अपने बेटे को कोई नेक काम करते देखे। मुसलमानों कसम खुदा की अगर कोई बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगता है तो माँ अगर देखती है अपने बच्चे को नमाज पढ़ती तो माँ को बड़ी खुशी हासिल होती है। अगर कोई बेटा झूठ ना बोलकर सच्चाइयत के रास्ते पर चलता, सच बोलता है और बाप ने बेटे को सच बोलते हुए देखकर इतना खुश होता है, इतनी खुशी उसे और कोई बाप में नहीं मिलती है जितनी खुशी अपने बेटे के सच बोलने पर मिलती है, जितनी खुशी अपने बेटे के सीधे रास्ते पर चलने के लिए मिलती है। ऐसे वो माँ बाप इतने खुश थे, बूढ़ी माँ इतनी खुश थी कि मेरे बेटे के सीने में खाना काबा अल्लाह का घर बैतुल्लाह देखने की ख्वाहिश पैदा हुई है। मेरा बेटा अल्लाह का मेहमान होने वाला है, गुंबद खजरा का दीदार करने वाला है। नौजवान मोहल्ले में मुबारकबाद देने के लिए निकला। ये नौजवान जाता है तो उसने रास्ते में जा ही रहा था, उसने क्या देखा कि एक मुर्दार लाश पड़ी हुई है जानवर की, एक मुर्दार पड़ा हुआ है, वहां पर एक खातून उस मुर्दार जानवर का गोश्त काट रही है। वो नौजवान जो हज की तैयारी कर रहा था तो ये मंजर खड़े होकर देखने लगा। उस औरत ने, खातून ने उस मरे हुए जानवर का एक गोश्त का टुकड़ा काट लिया। काटने के बाद वो गोश्त का टुकड़ा अपने घर लेकर गई। घर लेकर जाने के बाद वो नौजवान कहता है कि पीछे पीछे मैं भी चल दिया। मैंने सोचा कि देखते हैं कि ये खातून इस मरे हुए जानवर के गोश्त के साथ क्या करेगी, इस गोश्त का कौन सा ऐसा काम पड़ गया है, किस वजह से इसने मुर्दार के गोश्त को काटा है। वो नौजवान कहता मैं उस औरत के पीछे पीछे मैं भी होलिया चलता चला गया। वो औरत खातून अपने घर पहुंची। वो खातून तनहा नहीं थी, उसके 5, 6, 7 बच्चे भी उसके घर में छोटे छोटे मौजूद थे। उस खातून ने एक बर्तन लिया, उसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े किए, यानी बोटियां बनाने के बाद उसको हांडी पर पकने के लिए रख दिया। हांडी में गोश्त डालकर चूल्हे पर तंदूर पर पकने के लिए रख दिया। गोश्त पककर तैयार हो गया। उसने अपने खुद खाया और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। नौजवान कहता मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं फौरन उस खातून के पास पहुंचा और मैंने कहा मैं भूखा हूं, मुझे कुछ गोश्त के टुकड़े खिला दीजिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है, सीने में उठ रही है, मेरे पेट से आवाज आ रही, भूख लगी है, मुझे गोश्त के टुकड़े खाने को हमारा दिल करता है। एक टुकड़ा मुझे गोश्त का खिला दीजिए, एक बोटी गोश्त की खिला दीजिएगा। वो नौजवान कहता उस खातून ने कहा नहीं बेटा, वो गोश्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, वो गोश्त तुम नहीं उसको खा सकते हो, वो गोश्त सिर्फ हमारे लिए हलाल है। नौजवान ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो गोश्त का टुकड़ा तुम्हारे लिए हलाल है और हमारे लिए हराम है, जायज नहीं है। तो खातून नौजवान कहता है वो खातून की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो खातून रो रो के कहने लगी बेटा हमारा कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, हमारा शौहर दुनिया से चला गया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हमारे तमाम रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था, हमारे ऊपर जान बचाना फर्ज है। इस बुनियाद पर यह हराम गोश्त भी हमारे लिए अल्लाह ने हलाल कर रखा है ताकि मैं अपनी अपने बच्चों की जान बचा सकूं, मेरे पास कोई जरिया माश नहीं है। इतना कहा नौजवान ने जो हज की तैयारी के लिए जो पैसे की रकम रखी थी, अल्लाह अकबर, वो सारे पैसों की थैली उस खातून को दे दी और कहा ये पैसे ले लीजिएगा, ये हराम मत खाइएगा, ये पैसे आप ले लीजिएगा। अगर मैं हज जाना चाहता था मैं हज को नहीं जाऊंगा, अगर ये खातून मैंने तेरी मदद कर दी तो समझिए मेरा हज कबूल हो गया है। यही मेरा हज है कि एक गरीब की मदद मैं कर सकूं,
सकूं, इससे बड़ा मेरा कोई हज नहीं हो सकता है। उस नौजवान ने इतना कहा, माँ ये मेरा हज यही है कि तू मेरे पैसों को कबूल कर ले। उसको पैसे दे दिए। नौजवान घर आया, घर वालों से कहा मैं हज नहीं करूंगा। उस दिन सारे हाजी हज के लिए चले गए, सारे लोग हज के चले गए। इसने हज जाने से इनकार कर दिया, नहीं गया, इसके पास पैसे नहीं दे गए। जब मुसलमानों हाजी लोग हज से वापस आए, उस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ, किसी का हज कबूल नहीं हुआ। ये बंदा रात में सोया, ख्वाब में देखा। कहने वाले कहते हैं इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ। ऐ नौजवान शख्स, तू ही वाहिद शख्स ऐसा है कि साल में किसी का हज कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने सिर्फ तेरे हज को कबूल फरमाया है। तो नौजवान कहता है, अरे मेरा हज कहां से कबूल होगा, मैं तो हज के लिए गया ही नहीं था। जब मैं गया नहीं तो हज कहां से कबूल हुआ। तो उसको बताया कि नौजवान, तूने उस वक्त उस बूढ़ी खातून से कहा था, उस दुखियारी गरीब खातून से कहा था जो मुर्दार खा रही थी, कि मेरे पैसों को कबूल कर ले, हराम ना खा। अगर तूने पैसों को कबूल कर लिया, समझो अल्लाह ने मेरा हज कबूल कर लिया। गरीब की मदद करना मेरा हज है। जैसे तूने जबान से जुमले को निकाला था, अल्लाह ने तेरे हज को उसी वक्त कबूल कर लिया था। मुसलमानों अगर गरीब की मदद करना ये हज करने से बेहतर है। अगर तुम हज का इरादा रखते हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो तुम्हारा हज करना बेकार है। अगर तुम उम्रा करने जा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी एक एक टाइम के खाने के लिए मोहताज है, तो तुम्हारा उम्रा तुम्हारे लिए बेकार है। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास, तुम्हारे मोहल्ले में अगर फाके के साथ किसी की जिंदगी गुजर रही है, हराम खाकर जिंदगी गुजर रही, कोई जरिया माश नहीं उसके पास है, तो उस वक्त तुम्हारा हज करना और तुम्हारा उम्रा करना कोई काबिल कबूल नहीं है। अगर तुमने किसी गरीब की मदद कर दी, हज उम्रा करने से बेहतर सवाब तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने किसी गरीब की मदद की और हज को नहीं गए, तो तुम्हारा गरीब का मदद करना अल्लाह की बारगाह में तुम्हें हज कबूल का सवाब अता फरमाता है। मुसलमानों, गरीब की मदद करना अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती है। गरीब की मदद करना अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कबूल होता है। अल्लाह हम सबको गरीबों की मदद